So yes, hello everyone. Today we are going to discuss assessing elements and slicing in data frame. In the last video we have seen that the data frame had implicit index. That means it was automatically generated 0, 1, 2, 3 index. But now we are doing it with label based index, that is user defined. Now this label based index could be integer values, it could be string values, but they are user defined. So we'll go in very detail with all the errors that could arise and all the possibilities. We'll discuss bracket, double bracket, dot ilog, dot log, dot add, dot iadd, and we'll be clear with the syntaxes also, right? So moving forward, first of all, this is our data frame which has three column 1 to 3, three rows, column 1 to row 1 to 3. Now first row has value 1, 2, 3, second 4, 5, 6, and third row 7, 8, 9. Similarly, column 1 had value 1 plus 3, 4 plus 3, 7. Column 2 had value 2 plus 3, 5 plus 3, 8. Column 3 had value 3 plus 3, 6 plus 3, 9. I hope you're familiar with it so that we'll be able to prove it. Now, first of all, we are using bracket, square bracket. Now, we have seen that square bracket could be used to access only one element. For accessing one or more than one, we can use double square bracket, but they work similarly. So now here you can see there what that we have done df square bracket column 1. So what is the answer that it is giving? It is giving me accessing the first column with all the rows, row 1 to 3. What was the value in the first column? 1 plus 3, 4 plus 3, 7, right? And it is given that name column 1, date type, int 64. Clearer? Now when I access the row similar way, df square bracket, and I give the row labeled index, it gives me an error because using the square bracket we can only access column indexes, right? Now moving forward, so now it is accessing 0 to 1, okay, 2 minus 1 and minus 1, remember. So it is accessing row 1 and row 2. Please remember, whenever slicing is used in square bracket, it accesses rows. Now if I want to access the column, then I cannot use slicing using square bracket. Clear? Now similarly, now moving on to what we have children here is df square bracket row 1 colon row 3. Now what it is doing, it is a label based index, so it will not follow n minus 1. It will access all row 1, 2 and 3 till the last value. So slicing implicit and explicit बोथ इंडेक्स के साथ वर्क करती है. जब इंडेक्स इम्प्लिसिट है तो n माइनस वन फॉलो करती है लास्ट वैल्यू के लिए, और जब एक्सप्लिसिट है दैट इज यूजर डिफाइंड तो वो लास्ट वैल्यू तक एक्सेस करती है, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव df. अब मैंने कॉलमा देके यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर दिया या एक वैल्यू या स्लाइसिंग बेस्ड, बट ये मुझे एरर दे रहा है बिकॉज ये कॉलम को एक्सेस नहीं कर सकता. चलो मूविंग फॉरवर्ड, now what I have we are starting to use lock now. Now df dot lock row 1 I have given. तो इसने क्या किया, रो 1 एक्सेस कर दी उसके सारे कॉलम्स के साथ जो भी कॉलम उसमें थे. ना सिमिलरली नेक्स्ट मैंने क्या किया है, df डॉट लॉक स्लाइसिंग यूज करिए, रो 1 से लेके रो 2 तक एक्सेस करो और कॉलम 1 से कॉलम 2 तक. अभी मैंने पहले भी बताया था कि लॉक n-1 को फॉलो नहीं करता, तो जो भी स्टार्ट है उसके एंड तक सारे एक्सेस करेगा. तो रो 1 से लेके रो 2 तक और कॉलम 1 से लेके कॉलम 2 तक सब एक्सेस करेगा इंक्लूडिंग एंड वैल्यू. सो रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों ही एक्सेस यहाँ पे हमारे हो चुके हैं. यू कैन सी हियर, राइट? नाउ जब अब मैंने लॉक में क्या यूज कर दी, इम्प्लिसिट इंडेक्स 0 से कॉलन 1 यूज किया, ये मुझे एरर दे रहा है. ऐसा क्यों? तो लॉक का सिंटेक्स समझेंगे जो कि एट के सिंटेक्स से सेम है. जब यूजर डिफाइन नहीं कर रहा इंडेक्स, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, दैट मींस ऑटोमेटिकली जनरेटेड 0, 1, 2, 3 इंडेक्स है, तो लॉक उसके साथ और एट उसके साथ वर्क करेंगे. बट जहां यूजर ने डिफाइन कर दिया इंडेक्स, स्ट्रिंग हो, इंटेजर हो, फ्लोट हो, तो वो इम्प्लिसिट के साथ काम करना बंद कर देगा, वो सिर्फ यूजर डिफाइन इंडेक्स के साथ वर्क करेगा. तो यूजर डिफाइन क्या था, रो 1 से लेके रो 2 तक, कॉलम 1 से कॉलम 2 तक वो वर्क कर रहा है कॉल रो के साथ.
बट जब मैंने 0:1 दिया जो कि इम्प्लिसिट है, जो कि ऑटोमेटिकली एट द बैक एंड रहता है, वो इसके साथ वर्क नहीं कर रहा। यही एट का भी सीन है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ प्लीज सी, नाउ वी आर यूजिंग ilock। नाउ df.ilock मैंने स्लाइसिंग करी है और ये मैंने इम्प्लिसिट इंडेक्स यूज किया। ilock में i का मतलब ही इम्प्लिसिट है, दैट मीन्स इम्प्लिसिट इंडेक्स के साथ वर्क करता है। तो इसने क्या किया, 0:1, तो n-1 का रूल फॉलो करेगा, लॉक नहीं करता, ilock करता है। तो क्या करेगा, 0:1 दैट इज 0, सो सिर्फ 0 इंडेक्स पे जो रो है ये उसे एक्सेस करेगा, दैट मींस रो 1 को एक्सेस करेगा। अब मैं एक सिंगल भी दे सकता था, इसमें मैंने स्लाइसिंग दे दी। तो अगर इसमें मैं अब कॉमा डाल के कोई कॉलम के इंडेक्स भी डाल दूं तो उसे भी ये वैसे ही एक्सेस करेगा। सो सिंटेक्स क्या होता है, डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट रो के इंडेक्स या स्लाइसिंग, कॉमा कॉलम के इंडेक्स या स्लाइसिंग। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम df.ilock रो 1 जो मैंने खुद डिफाइन कर रखा है ये डाला तो मुझे एरर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ilock सिर्फ इम्प्लिसिट इंडेक्स के साथ वर्क करता है, दैट मींस जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो। जब हम अपना इंडेक्स डाल देते हैं यूजर डिफाइन, लाइक मैंने call1 call2 call3 डाला, स्टिल बैक एंड में इम्प्लिसिट इंडेक्स रहते हैं जिनके साथ ilock एंड iat वर्क करते हैं। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे एट को। जब मैंने यूज किया हमारा चिल्ड्रन एट फंक्शन, ठीक है, जब मैंने लिखा यहां df.add स्क्वायर ब्रैकेट रो 1 कॉमा call1, ये लेबल इंडेक्स्ड है तो इसीलिए इन्हें हमें किस में डालना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग भी है इसलिए इन्हें कोटेशन में डालना पड़ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ रो 1 लिखता तो मुझे एरर दे देता। क्यों, क्योंकि एट और iat हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, रो कॉमा कॉलम। तो रो 1 के कॉलम 1 पे क्या वैल्यू है, 1 है, तो इसने वो एक्सेस कर दी। तो ये यूजर डिफाइन के साथ वर्क कर रहा है लॉक की तरह, बट लॉक की तरह ही इम्प्लिसिट के साथ वर्क नहीं कर रहा। जब मैंने 0 रो कॉमा 1 कॉलम के लिए एक्सेस करने को कहा तो मुझे एरर दे रहा है कि ऐसा कोई इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है। नाउ सिमिलरली लेट अस वर्क विद स्लाइसिंग। एट और iat क्या स्लाइसिंग के साथ वर्क करते हैं, चलो देखें। जब मैंने लिखा df.at और मैंने डिफाइन कर दी रो के लिए स्लाइसिंग, रो 1 कॉलन रो 2 की रो 1 से रो 2 तक एक्सेस कर दो मुझे, इसने मुझे एरर दे दिया। अब एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने स्लाइसिंग यूज करी, एरर इसलिए आया क्योंकि ये 2 आर्ग्यूमेंट मांगता है, इनिशियल कंडीशन इसकी है, पर मैं तो सिर्फ रो के लिए आर्ग्यूमेंट दिया, कॉमा कॉलम के लिए आर्ग्यूमेंट तो दिया ही नहीं, इसलिए एरर आ गया। बट अब देखते हैं कॉलम का भी डिफाइन करके, तो हमने क्या किया, कॉलम का भी डिफाइन कर दिया, पर ये फिर भी एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि एट और iat के साथ स्लाइसिंग वर्क नहीं करती, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल कॉल रो के इंडिविजुअल कॉलम पे क्या एक अकेली वैल्यू है, ये सिर्फ उसे एक्सेस कर सकते हैं, एक सीरीज ऑफ वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते एट एंड iat। राइट, सो iat के लिए अब दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ ही गए हैं। बट अब देखेंगे df.iat, जब मैंने अब इसके साथ क्या यूज किया, अपना यूजर डिफाइंड इंडेक्स रो 1 के कॉलम 1 पे क्या वैल्यू है वो एक्सेस कर दो, तो इसने मुझे क्या दे दिया, एरर। iat, i का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट, तो ये यूजर डिफाइन के साथ ilock की तरह ही वर्क नहीं कर सकता। अब सिमिलरली df.iat मैंने लिख दिया 0,1 कि 0 रो के 1 कॉलम पे क्या वैल्यू है, तो इसने मुझे 2 दे दिया, मतलब ये इम्प्लिसिट इंडेक्स के साथ वर्क कर रहा है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू विद द journey and will cover all the syllabus. For notes, ppts, latest syllabus and all the study material related to this year boards and QET IPCS domain, you can follow us on Telegram. Our link is in the description. Thank you.